Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, transfer for the benefit of unborn child has been mentioned under which section of Transfer of Property Act 1882? Section 13, Section 14, Section 15 और Section 16? अजन्मे बच्चे के लाभ के लिए स्थानांतरण का उल्लेख संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की किस धारा के तहत किया गया है? धारा 13, धारा 14, धारा 15 या धारा 16? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 13. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 13. The law relating to transfer for the benefit of unborn person is laid down in Section 13 of Transfer of Property Act 1882. The underlying principle of Section 13 is that a person disposing of property to another shall not be fetter the free disposition of that property in the hands of more than one generation. The transfer for the benefit of an unborn person must be preceded by a life interest in favor of living person in existence at the date of the transfer, and it should be an absolute interest. अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए स्थानांतरण से संबंधित कानून संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 13 में दिया गया है. धारा 13 का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति किसी अन्य को संपत्ति का व्ययन करता है वह उस संपत्ति के स्वतंत्र व्ययन को एक से अधिक पीढ़ियों में नहीं देगा. किसी अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए स्थानांतरण से पहले स्थानांतरण की तिथि पर अस्तित्व में रहने वाले व्यक्ति के पक्ष में जीवन हित होना चाहिए और यह पूर्ण हित होना चाहिए. Next question is, delivery under the Sale of Goods Act means transfer of possession from one person to another, voluntary transfer of ownership from one person to another, voluntary transfer of possession from one person to another, or none of the above. वस्तु की बिक्री अधिनियम के तहत परिधान का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का हस्तांतरण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का स्वैच्छिक हस्तांतरण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वैच्छिक हस्तांतरण या उपयुक्त में से कोई भी नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वैच्छिक हस्तांतरण. As per subsection 2 of section 2 of the Sale of Goods Act, delivery means voluntary transfer of possession from one person to another. As per section 33 of the Sale of Goods Act, delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf. वस्तु की बिक्री अधिनियम की धारा 2 उपधारा 2 के अनुसार परिधान का अर्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वैच्छिक हस्तांतरण है. वस्तु की बिक्री अधिनियम की धारा 33 के अनुसार बेची गई वस्तुओं का परिधान कुछ भी करके किया जा सकता है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हों, उसे डिलीवरी माना जाएगा, या जिसका प्रभाव वस्तु को खरीदार या उसकी ओर से उन्हें रखने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में रखने पर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 96 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री? 30 days, 45 days, 60 days और 90 days? डिक्री की तारीख से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 30 days. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 30 दिन. Under section 96 of the Code of Civil Procedure 1908, a party aggrieved by a decree passed by a subordinate court may file an appeal to the High Court. The time limit for filing such an appeal is 30 days from the date of the decree. This time limit is crucial as it ensures timely resolution of disputes and prevents unnecessary delays in the appellate process. Failure to adhere to this time limit may result in the appeal being dismissed as time barred. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से व्यथित पक्ष उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है. ऐसी अपील दायर करने की समय सीमा डिक्री की तारीख से 30 दिन है. यह समय सीमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विवादों का समय पर समाधान सुनिश्चित करती है और अपीलीय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को रोकती है.
इस समय सीमा का पालन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप अपील काल बाधित के रूप में खारिज कर दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द इंडियन पीनल कोड which of the following acts constitutes the offense of criminal breach of trust? Theft of movable property, dishonest misappropriation of property possessed by deceased, dishonest misappropriation of property entrusted to someone, or receiving stolen property knowing it to be stolen. भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपराधिक विश्वासघात है? चल संपत्ति की चोरी, मृतक के पास मौजूद संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, किसी को सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, या चोरी की संपत्ति है जानते हुए भी प्राप्त करना कि वह चोरी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंट्रस्टेड टू समवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी को सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। Under Section 405 of the Indian Penal Code, the offence of criminal breach of trust occurs when someone dishonestly misappropriates or converts to their own use any property entrusted to them or which they have control over in violation of any direction of law. This offence typically involves a breach of confidence or trust reposed in the accused regarding the property entrusted to them. भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत आपराधिक विश्वासघात तब होता है जब कोई कानून के किसी निर्देश का उल्लंघन करते हुए उन्हें सौंपी गई या जिस पर उनका नियंत्रण हो किसी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है या अपने उपयोग में परिवर्तित कर लेता है। इस अपराध में आमतौर पर अभियुक्तों को सौंपी गई संपत्ति के संबंध में व्यक्त किए गए विश्वास या भरोसे का उल्लंघन शामिल होता है। द लास्ट क्वेश्चन इज, the prescribed period of limitation for preferring an appeal under Section 28 of the Hindu Marriage Act is 30 days, 60 days, 90 days, or 120 days. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 के तहत अपील दायर करने के लिए सीमा की निर्धारित अवधि है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 90 days. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 90 दिन। Section 28 of the Hindu Marriage Act 1955 deals with the provision for the enforcement of decrees and orders made by the family courts or district courts in matters related to matrimonial disputes. As per Section 28 Clause 4, every appeal Section 28 shall be preferred within a period of 90 days from the date of the decree or order. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में पारिवारिक न्यायालयों या जिला न्यायालयों द्वारा दिए गए डिक्री और आदेशों को लागू करने के प्रावधान से संबंधित है। धारा 28 उपधारा 4 के अनुसार धारा 28 की प्रत्येक अपील डिक्री या आदेश की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी। बिफोर वी रैप अप, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। Under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, besides passing orders for protection in residence, a magistrate can pass custody orders, compensation orders, ex parte orders, or all of the above. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत सुरक्षा और निवास के लिए आदेश पारित करने के अलावा एक मजिस्ट्रेट कौन सा आदेश पारित कर सकता है? अभिरक्षा आदेश, मुआवजा आदेश, एक पक्षीय आदेश या उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।